अब मैं किसी को परमिट नहीं करूंगा। ओके, सो लेट्स टेक अ प्रॉब्लम। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस हमने स्टार्ट किया था। तो जो कोऑर्डिनेट्स थे या जो पैरामीटर्स थे, है ना, जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, वो पैरामीटर्स कौन कौन से थे? एक एंड पॉइंट ऑफ लाइन, एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, ठीक है। इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन तो उसके एंड पॉइंट है। सो प्रोजेक्शंस ऑफ एंड पॉइंट्स of line. Then actual length or true length of line, लाइन की एक्चुअल लेंथ या लाइन की ट्रू लेंथ, जिसको हम शॉर्ट में टीएल से डिनोट करते हैं। इस ये पैरामीटर हमने डिस्कस किया था। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन with horizontal plane, that is with respect to plane, हाँ, ट्रू लेंथ का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे मतलब ट्रू लेंथ की बात हो रही, इज थीटा, that is true length angle with horizontal plane. Then angle of inclination of line with vertical plane, that angle was phi. So this angle is true length, लाइन की जो ट्रू लेंथ है उसका एंगल विथ वर्टिकल प्लेन। Now in projections, so we have front view length, front view की लेंथ हमने डिस्कस की थी, that is length of the front view या length of the line in front view. Top view length, so that is length of line in top view, ये है length of line in front view. This is length of line in top view. Side view length, so this is the length of line in side view. Top view length, that is length of line in top view, ठीक है। फ्रंट व्यू लेंथ, टॉप व्यू लेंथ, सॉरी टॉप व्यू लेंथ होगी, साइड व्यू लेंथ, हाँ ओके, दो बार ली कोई। देन angle of inclination of front view with xy line is alpha.
and angle of inclination of top view with xy line is बीटा, है ना, अल्फा बीटा थीटा और फाई क्लियरली मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। Then there is a angle of चलो बाद में करेंगे इस केस को, ठीक है। सो एंड पॉइंट प्रोजेक्शंस, फ्रंट व्यू ऑफ एंड पॉइंट A and end point B if AB is the line, and true length. Now problem, let's solve this problems. So problem is, draw the projection of line AB whose endpoint A is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. The line is inclined. The line is inclined to horizontal plane by an angle of 30 degree. The line is parallel to vertical plane. The line is parallel to vertical plane. So draw the projection of line AB. So this is our problem. We have to draw the projection of line AB. Whose endpoint A is 15 above HP and 20 in front of VP. So this is the endpoint A, and the line is inclined with the horizontal plane by 30 degree. So this angle is 30 degree, and it is parallel with VP. So it is parallel with VP. So we have to draw the projection of this line. Okay. So let's start. First of all, draw the XY line. So we'll draw the XY line. So this is our XY line. Okay. So on this XY line, draw the projector of A. Since A point, when we have to solve the problem, the first thing is we have to draw the projections of points first. Always draw the projections of points. ठीक है, उसके end points हो, the point may be the end point, or the point may be any point which is situated on the line. ठीक है, so you have to start with that point, projections of that point. So here the point A is completely defined. Completely defined means
its distance from the horizontal plane and its distance from the vertical plane is known to us. So the point is completely defined. So we'll draw the projection of A point first. So this is the projector of A. So this is A0. Okay. And then locate the point A dash and A. That is the front view of point A and top view of point A. So this point is situated 15 above. So A dash is 15 above and A top view 20. So this is 10 and this is 20. So 20. So this is the point A dash and this is point A. And also draw the locus of this front view and the top view. So the locus of this front view and the top view is this line. So this is the locus of front view and this is the locus of top view. So this is so a projection of endpoint A is completed. Now the line is inclined to the horizontal plane by an angle of 30 degree and the line is parallel to VP. So from now to draw the angle, fix one of the endpoint of the line. So this is A and this is B. So here since A is completely defined, so I will fix this point in this space. Means the line can rotate about this point. Is fixed or hinged. So the point is hinged here. So the line can make a rotation or the rotation in this way. Okay. So this is fixed. Once the one of the endpoint is made as a hinge or fixed. So here write capital A dash along with small a dash and capital A along with small a. क्योंकि ये point fix है. So these are this point will be the actual position of the point and this is the actual position of the point, the HP and VP. And remember कि theta angle will always be drawn from capital A dash or capital B dash or capital C dash, etc. Actual point to fix. And phi angle, that is the angle with the vertical plane, that has to be drawn from capital A. This is capital A, comma यहाँ है, यहाँ नहीं. So capital A dash and capital A. Theta angle drawn will be drawn from the point A dash, capital A dash, and this phi angle is to be drawn from capital A point. हाँ, सो थीटा एंगल कैपिटल ए डैश से बनेगा, फाई एंगल जो है हमेशा कैपिटल ए से बनेगा ऑलवेज. अल्फा और बीटा एंगल, अल्फा एंगल बनेगा स्मॉल ए डैश से और बीटा एंगल बनेगा स्मॉल ए से.
यस, सो अब कैपिटल ए डैश पॉइंट आ गया, कैपिटल ए आ गया, मतलब थीटा और फाई एंगल हम बना सकते हैं। फाई एंगल 0 है क्योंकि लाइन वीपी से पैरेलल है, तो थीटा हम एंगल बनाएंगे कैपिटल ए डैश से, तो ड्रॉ कर लेते हैं 30 डिग्री। सो 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री का कितनी 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड ओहो ओहो ओके, लेट इट बी, देखते हैं क्या है। 1 2 एंड 3, हाँ ठीक। सो 30 डिग्री पे आई एम ड्राइंग अ लाइन, so this is the line which is inclined at 30 degree. So this angle is 30 degree, and since the line is parallel to vertical plane, so this 30 degree angle is also alpha. This 30 degree angle is also alpha. ये angle alpha ही है. So here theta is equal to alpha. So this angle is theta, and also this is alpha. Now what will be the length of the line? So length is not mentioned, so we need to have some dimension, some parameter. So let us consider the length of the line is 60 mm. So the length of the line is 60 mm. So on this line we'll mark a point at a distance of 60 mm from A, capital A dash से 60 mm के distance पे हो. So this is my point 60. So this point is capital B dash, capital B dash. Now from this B dash, capital B dash, draw its locus also. So locus of capital B dash. So this is the locus of capital B dash. On this line, small b dash will lie. Small b dash. So small b dash कहाँ होगा? Now here, since the line is parallel to the vertical plane, parallel to the vertical plane, so its front view length will be equal to the true length. So front view की जो length होगी, that is equal to the true length. तो true length के बराबर होगी. Means this point will now be small b dash also. So capital B dash and small b dash will coincide here. So this point is small b dash. Now from small b dash, draw. So one of the view of B is available now. So the other view, top view, will lie from a projector drawn through B dash. B dash से जब हम एक प्रोजेक्टर बनाएंगे तो उस प्रोजेक्टर पर B लाई करेगा, तो हम बना लेते हैं, ये प्रोजेक्टर हम बना लेते हैं। इस प्रोजेक्टर पर स्मॉल b लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा? जहां पे ए का प्रोजेक्टर, ए का ये जो लोकस है, ये ए का लोकस, ए की लोकस लाइन जहां पे बी डैश के प्रोजेक्टर पर इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट होगा स्मॉल बी।
क्योंकि ये लेंथ ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू की लेंथ है, सो दिस विल बी द प्रोजेक्टेड लेंथ इन द टॉप व्यू। टॉप व्यू में ये लेंथ होगी, सो दिस इज अवर टॉप व्यू लेंथ, ये टॉप व्यू की लेंथ होगी हमारी। सो ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। सो फ्रंट व्यू बन गया लाइन का, टॉप व्यू बन गया लाइन का। नाउ व्हाट विल बी द साइड व्यू? दिस इज द लेंथ इन द टॉप व्यू। साइड व्यू में आप इधर से देखें, दी लेफ्ट साइड से, दिस साइड से। सो दिस विल बी द लेंथ इन द साइड व्यू, ये साइड व्यू में लेंथ आएगी। ठीक है, अब वो साइड व्यू कैसे बनाना है, सो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं यहीं पे कि इफ टू व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर शोन, then we can draw third view also. If we know the front view and the top view, we can draw side view. If we know the side view and the front view, we can draw the top view. Or if we know the top view and the side view, then we can draw the front view. ठीक है, तो उसकी क्या मेथड है समझ लेते हैं हम। क्या मेथड है, हमें क्या करना है, इस XY के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है। सो दिस लाइन इज x1 y1, ऐसी लाइन बनानी है। ये लाइन जो है, दिस लाइन इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन विथ द साइड प्लेन, साइड प्रोफाइल प्लेन। ये साइड प्रोफाइल प्लेन और जो सॉरी, ये यदि आपका वर्टिकल प्लेन है और ये साइड प्लेन है, तो ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज x1 y1, क्योंकि आप इसको ऐसा कर रहे हो। सो दिस लाइन इज x1 y1, ये x1 y1 लाइन होगी। इस x1 y1 लाइन से नाउ x1 y1 और xy लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सो दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। दिस पॉइंट इज द ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से यू हैव टू ड्रा लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इससे 45 डिग्री पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। दिस इज 45 डिग्री, 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इससे। सर ये हम 45 डिग्री पे ही क्यों कर रहे हैं? 45 डिग्री पे इसलिए कर रहे हैं कि जब हमने मतलब ये जो दो प्लेन है ना, दिस इज योर वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज योर प्रोफाइल प्लेन, तो ये जब रोटेट हुए ये इस तरह से, तो ये 90 डिग्री से टर्न हुआ तो ये यहां पर आया। और टॉप व्यू में क्या हुआ, इसके साथ में आप देखें तो ये ऐसा टर्न हो रहा है और टॉप व्यू ऐसा टर्न हो रहा है, सो दैट एंगल इज 90 डिग्री का एंगल है इन प्लेन्स के बीच में। तो हम 45 डिग्री की लाइन यहां ले रहे हैं, टॉप व्यू के पॉइंट्स यहां पर प्रोजेक्ट करेंगे 45 डिग्री लाइन पर, और इनको हम इस प्लेन में लेके आएंगे। ठीक है, हम पॉइंट को टर्न कर रहे हैं 90 डिग्री से, 90 डिग्री का रोटेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि टॉप व्यू में सॉरी फ्रंट व्यू में साइड व्यू में आपको कौन सी लेंथ मिलेगी, लेट मी शो यू वन फिगर ऑल्सो। ये फिगर ना, ऑब्जर्व दिस फिगर। दिस इज लेंथ, this dimension is height, this dimension is length, this dimension is height, this dimension is length here also, यहां पर भी ये dimension length में, ऑब्जेक्ट को मार्क कर दे, नो प्रॉब्लम, और ये डायमेंशन है हाइट का। ठीक है, and in the top view this dimension is
ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन W का विड्थ का है, ठीक है ना। यहां से जब हम इसको देख रहे हैं तो ये लेंथ है, दिस इज योर लेंथ, एंड सॉरी किधर से देखा भाई हमने, नहीं इस तरफ से नहीं देखा, दिस इज योर W, हाँ दिस इज योर W, लेंथ हम यहां से देखा हमने, इसको देखकर, सो दिस इज लेंथ, और ये जो डायमेंशन था, दिस डायमेंशन, ये डायमेंशन था हाइट, ये हाइट का डायमेंशन, ये लेंथ का डायमेंशन, और ये विड्थ का डायमेंशन। तो फ्रंट व्यू हमने यहां से देखा, तो फ्रंट व्यू में हमें लेंथ और हाइट का डायमेंशन मिलता है, तो ये लेंथ और ये हाइट का डायमेंशन मिला। टॉप व्यू में हम यहां से देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में हमें ये लेंथ का डायमेंशन मिल रहा है, सो दिस इज द लेंथ, और ये विड्थ या डेप्थ का डायमेंशन हमें ये। जबकि साइड व्यू में जब हम देखेंगे यहां से, तो साइड व्यू में ये विड्थ वाला जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन xy के पैरेलल बनेगा, सो दिस डायमेंशन इज W, ये W है, और ये हाइट का डायमेंशन है। Yes, sir. तो साइड में देखें तो हाइट वाला तो फ्रंट व्यू से मिल जाएगा कि ये हाइट का डायमेंशन आ गया फ्रंट व्यू से, हमें विड्थ वाला डायमेंशन साइड व्यू में मार्क करना है। नाउ दिस विड्थ डायमेंशन इज अवेलेबल इन द टॉप व्यू, ये टॉप व्यू में अवेलेबल है, लेकिन टॉप व्यू में इसकी रिलेशन XY के साथ में क्या है, ये 90 डिग्री XY के साथ, जबकि साइड व्यू में इस डायमेंशन की रिलेशन XY के साथ में क्या है, पैरेलल, यहां परपेंडिकुलर है XY के, जबकि यहां पे ये पैरेलल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस टॉप व्यू का जो विड्थ वाला डायमेंशन है, इसको जब यहां पे ले जाना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो कितना टर्न होगा इस डायमेंशन में, 90 डिग्री का। सो उसके तरीके क्या है कि इसको आप, इस डायमेंशन को आप यहां पर ले जाओगे साइड व्यू में, तो वन वे इज कि आप एक ओरिजिन ले लो और इस ओरिजिन से ये x1 y1 लाइन ड्रॉ कर लो, ये रही आपकी xy लाइन, ये x1 y1 लाइन, तो ये रहा ओरिजिन। या तो आप क्या करो, इन सभी पॉइंट्स को इस x1 y1 लाइन पर प्रोजेक्ट करो, और फिर ओरिजिन से इतना रेडियस लेके इसको इधर रोटेट कर दो, ये यहां ओरिजिन पे रखा आपने, और यहां से इसको इतना रोटेट कर दो, 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। दिस इज वन मेथड की इसे रोटेट कर। दूसरी मेथड क्या है कि आप यहां से 45 डिग्री की लाइन बनाओ, और इस पॉइंट को यहां से आप यहां ले जाओ, है ना। इन पॉइंट्स को P को, जैसे ये P पॉइंट है, तो इसको हम यहां पे प्रोजेक्ट कर लेंगे, इसे ये 45 डिग्री की लाइन पर, इस D को भी हम यहां पे प्रोजेक्ट कर लेंगे ये, और फिर यहां से आप इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर लो, तो ये टर्न भी 90 डिग्री का हो गया। तो इसलिए मैंने ये बताया कि यहां से 45 डिग्री की लाइन बना ले, जो कि हम यहां पे बनाएंगे, ये रही, और इन पॉइंट्स को हम यहां पे प्रोजेक्ट कर लेंगे इस लाइन पर, जो कि यहां से 45 डिग्री पे बनी, इस मेथड को लेके, और यहां से हम इसको 90 डिग्री से टर्न करेंगे। तो यहां से हॉरिजॉन्टल आया और यहां से वर्टिकल, अब हम इसको यहां ले जाएंगे। हम इसको यहां ले गए, ये ठीक है। अब ये A टॉप व्यू, ये रहा इसका प्रोजेक्टर, इस लाइन तक गया, यहां से 90 डिग्री चेंज हुआ, ऊपर की तरफ गया, ये इस पर, और फ्रंट व्यू का A डैश, इन दोनों के लोकस जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट साइड व्यू में होगा A डबल डैश। साइड व्यू के जो पॉइंट होंगे ना, उनकी नेमिंग हम करेंगे A डबल डैश से। तो A डबल डैश पॉइंट कैसे लोकेट होगा,
कि ए का टॉप व्यू, ये ए का टॉप व्यू का लोकस ये है, और एक फ्रंट व्यू ए डैश का लोकस, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो साइड व्यू का पॉइंट होगा. सो दिस पॉइंट इज ए डैश, ए डबल डैश. नाउ लोकेट बी डबल डैश. बी डबल डैश कैसे लोकेट करेंगे? बी डैश का लोकस, ये रही बी डैश का लोकस, और इसका टॉप व्यू बी, तो ये रहा बी, ये भी हमने यहां पे प्रोजेक्ट किया, यहां से ये घुमा के ऊपर गए, तो दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ऊपर वाले पे. ये सो दिस इज बी डबल डैश, और दिस इज साइड व्यू. ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, ये साइड व्यू, और ये साइड व्यू की लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ साइड व्यू. This is top view length, this is side view. So this is side view. ये साइड व्यू बनाने का तरीका है. कोई क्वेश्चन किसी को साइड व्यू बनाने में? अगला क्वेश्चन करें. क्वेश्चन ये समझ में आया, प्रॉब्लम सॉल्व करना? सर आप इसको एक बार छोटा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा? यस सर, एक बार फिर से समराइज कर दो उसको. हम इसको दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उससे भी समझ में आ जाएगा. सेम प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है? यस सर. प्रॉब्लम में चेंज क्या करूंगा इसमें कि जो एंगल ये थीटा था वो एंगल अब फाई हो जाएगा. दैट्स इट. समझ में आया? प्रॉब्लम रीड कर दो. प्रॉब्लम रीड कर देता हूं. Draw the projections of line AB whose endpoint A is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. The line is inclined to the vertical plane. Now the line is inclined to the vertical plane by an angle of 30 degree. Line AB, and length of the line is 60 mm. And the line is parallel to the horizontal plane. मतलब वीपी को मैंने एचपी से रिप्लेस कर दिया यहां पे. ठीक है? प्रॉब्लम समझ में आया कि ये लाइन है, दिस इज माय लाइन ए बी. नाउ दिस ए इज 15 अबव एचपी, ये रहा 15 अबव, और वीपी से 20, तो ये 20. ठीक है? नाउ दिस लाइन इज इंक्लाइंड विद द वर्टिकल प्लेन. दिस इज द वर्टिकल प्लेन. So the line is inclined to the vertical plane. कितने से? 30 डिग्री से. ये 30 डिग्री से. ठीक है? तो जब ऐसा है तो क्या होगा? टॉप व्यू में क्या बनेगा? टॉप व्यू इंक्लाइंड होगा. ठीक है? देखते हैं. सबसे पहला काम क्या करना है हमें, बताइए. XY line draw करेंगे. Let's draw the XY line. So we have drawn the XY line. XY line हमने draw कर ली. Then इस लाइन पर since the point A is completely defined, so हम क्या करेंगे? A का प्रोजेक्शन बनाएंगे. ठीक है? तो ए का प्रोजेक्शन बनाएंगे तो यहां पर इस एक्स वाई लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये ए 0 पॉइंट होगा. ये ए का प्रोजेक्टर है. इसके ऊपर फ्रंट व्यू होगा और टॉप व्यू होगा. तो हम मार्क कर लेते हैं कि फ्रंट व्यू कहाँ आएगा और टॉप व्यू कहाँ आएगा. तो ए का फ्रंट व्यू मतलब यहां से 15 पे, ये रहा 15 पे, दिस इज द पॉइंट, और नीचे ए 20 mm, दिस इज 20 mm. और यहां से इन दोनों पॉइंट से आप लोकस लाइन भी ड्रॉ कर लो, इनकी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लोकस लाइन.
क्योंकि एक्स वाई से इनका डिस्टेंस फिक्स है। ये मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू उधर ऊपर नहीं फ्रंट व्यू ऊपर नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता। सिमिलरली टॉप व्यू भी इधर एक्स वाई के पास नहीं जा सकता और दूर नहीं जा सकता। तो ये इसका लोकस इस पर, ये दोनों फ्रंट व्यू ऐसा मूव कर सकता है यहाँ पर, इसके पास में ये लिबर्टी कि वो यहाँ से यहाँ घूम सके ऐसा, इसलिए लोकस लाइन हमने बनाई। ए का जो टॉप व्यू है इस एक्स वाई से 20 mm के डिस्टेंस पर, तो वो इस पे मूव कर सकता है। लेकिन जब हमने प्रोजेक्टर बना दिया तब ए डैश और ए फिक्स हो गया, तब यहां पर जो है वो ए डैश हो जाएगा आपका, ये ए डैश और ये हो जाएगा ए, तब नहीं मूव कर सकता वो। ठीक है, तो ये कर लिया। देन लाइन का एक पॉइंट को आपको हिंज करना है, सिंस ए पॉइंट इज नोन हियर, ए पॉइंट हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, ए को हिंज कर देते हैं। तो जैसे ही हम ए को हिंज करेंगे, यहां लिखेंगे कैपिटल ए डैश और यहां लिखेंगे कैपिटल ए। ठीक है, अब जो फाई एंगल है 30 डिग्री का, फाई एंगल इज 30 डिग्री, तो फाई एंगल हमेशा बनेगा कैपिटल ए से। तो हम इसे 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। सो 10 20 30, ये रहा सर 30। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब आ रही है आवाज? सो ए Yes, से sir, आ रही है। ए से 30 डिग्री पे अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहां से कितनी बड़ी लाइन बनाऊं? 60 सिंस mm. इट इज गिवन कि 60 mm, तो हमने 60 mm पे लाइन ड्रॉ कर ली। तो कैपिटल ए से कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल बी। हाँ, जैसे ही कैपिटल बी पॉइंट मिला ए से 60 mm की दूरी पे, इसकी भी लोकस लाइन ड्रॉ कर लो। यहां से ये लोकस लाइन रही, ठीक है। मतलब स्मॉल बी इस लाइन के ऊपर लाई करेगा टॉप व्यू का पॉइंट, पर यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, ये यहां आएगा। पता करते हैं कहां आएगा। सिंस दिस एंगल इज फाई और द लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजेंटल प्लेन, तो हॉरिजेंटल प्लेन में जो भी व्यू बनेगा वो ट्रू लेंथ का होगा। तो हॉरिजेंटल प्लेन में टॉप व्यू बन रहा है हमारा, तो ये टॉप व्यू ट्रू लेंथ का है, तो ये एंगल भी ट्रू होगा। सो दिस फाई इज इक्वल टू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो तब यदि लाइन पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है लाइन, तो इसका मतलब हो गया स्मॉल बी इस कैपिटल बी के साथ में ही होगा। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। जैसे ही हमने स्मॉल बी ड्रॉ किया, मतलब ड्रॉ भी यही, कैपिटल बी इज स्मॉल बी, तब स्मॉल बी से हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। सॉरी, ये कर लेंगे। ये स्मॉल बी से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, ये प्रोजेक्टर लाइन। बीच में आवाज चली गई थी हम लोगों की, मतलब क्या? सर आपकी स्क्रीन अटक गई थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था जब आपने ए डैश और ए मार्क किया था उसके बाद। अच्छा, अभी अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। अच्छा देखो, मैंने क्या किया कि ए डैश और ए बनाया, ये प्रोजेक्टर, उसके बाद में ये लोकस लाइन ड्रॉ की। फ्रंट व्यू की लोकस लाइन ये रही, टॉप व्यू की लोकस लाइन ये रही ए की, और उसके बाद में इस ए से, कैपिटल ए से टॉप व्यू में, क्योंकि ये फाई एंगल है 30, तो कैपिटल ए से बनेगा। तो यहां से ये 60 mm लॉन्ग लाइन बना ली। बी पॉइंट मिला, इस बी पॉइंट से मैंने फिर ये लोकस लाइन बना ली
ग्रीन कलर की बी का जो टॉप व्यू है उसका लोकस। तो सिंस द लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसलिए कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों कोइंसाइड करेगा। तो जो कोइंसाइड करेगा तो यही पॉइंट स्मॉल बी भी हो गया। फिर मैंने यहां से एक प्रोजेक्टर बनाया, ये इस प्रोजेक्टर के ऊपर स्मॉल बी डैश लाई करेगा। अब ये स्मॉल ए डैश का प्रोजेक्टर ये रहा, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा, सो दिस विल बी द स्मॉल बी डैश। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, तो जो बी डैश होगा स्मॉल बी डैश वो ए डैश की लाइन में ही होगा। तो ये टॉप व्यू और ये हमारा फ्रंट व्यू। तो जोड़ लो ए डैश और बी डैश को, ए डैश और बी डैश को जोड़ लो। सो दिस इज अवर फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द साइड व्यू? तो साइड व्यू ड्रॉ करने का प्रोसीजर ये है कि एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लो एट सम सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम दिस व्यू। यहां से कुछ डिस्टेंस पर हम एक x1 y1 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज x1 y1 लाइन। ये x1 y1 लाइन xy लाइन को जहां पे कट करेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। सो दिस इज आवर ओरिजिन। इस ओरिजिन से हम 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें टॉप व्यू को 90 डिग्री से रोटेट करना है यहां से, ये जो लेंथ है इसको, इसलिए हम इसको 45 डिग्री टर्न कर लेंगे। तो ये ओरिजिन से हम 45 की एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। और टॉप व्यू के जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स से ये टॉप व्यू का पॉइंट और ये टॉप व्यू का पॉइंट, ये तो यहां से एक्स वाई के पैरेलल लाइन बनानी, जो ये लोकस लाइन बनी हुई है, इसको हमें एक्सटेंड करना है 45 डिग्री लाइन तक, तो यहां तक आए। सिमिलरली ये टॉप व्यू का बी पॉइंट है, इस बी को भी इस लाइन पे प्रोजेक्ट करना 45 डिग्री पे, तो यहां पर आया ये दोनों। ठीक है। अब इनको हमें 90 डिग्री से टर्न करना है। तो अब ये फ्रंट व्यू टर्न होगा यहां से 90 डिग्री से, तो ये फ्रंट व्यू 90 डिग्री से टर्न हुआ, सॉरी इसका लोकस ना, हाँ, तो ये टर्न होकर इधर गया। सिमिलरली बी इधर गया। तो यहां पर इस लाइन के ऊपर साइड व्यू का पॉइंट होगा एक, और इस लाइन पर होगा दूसरा पॉइंट। कहां होगा? तो लोकेट करते हैं। ए का साइड व्यू, ये ए का फ्रंट व्यू ए डैश, ये ए का टॉप व्यू ए, और ए का साइड व्यू ए डबल डैश। तो वो होगा इस ए का टॉप व्यू वाली लाइन, ये रही इस लोकस में, और ए डैश की लोकस लाइन, दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस जगह। सो दिस इज ए डबल डैश। सिमिलरली लोकेट बी डबल डैश। सो दिस इज बी, ये रहा बी, यहां तक आया, यहां आया, इस लाइन पे आके ये टर्न लिया 90 का, तो ऊपर गया, इसके ऊपर आएगा बी डबल डैश, और बी डैश वाले लोकस पे भी होगा, तो बी डैश वाला और ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज बी डबल डैश। ज्वाइन दिस, इन दोनों को जोड़ दो। सो दिस इज द साइड व्यू। ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ ड्राइंग थर्ड व्यू इफ टू व्यूज आर गिवन। ये समझ में आया आप? यस सर।
भाई किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, डोंट हेजिटेट. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम. 2 प्रॉब्लम हमने किए. नाउ अब थर्ड प्रॉब्लम करते हैं. आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलो सिंपल प्रॉब्लम. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं. So next problem is draw the projections of a line. Draw the projections. मैं लिख लूं क्या? लिख देता हूं. चलो सिंपल प्रॉब्लम है. ओके, प्रॉब्लम नंबर 2. Draw the projections of line PQ whose endpoint P is 20 mm above HP and 20 mm in front of VP and 20 mm in front of VP. The endpoint Q is 30 mm above, okay, 30 mm above HP and 40 mm in front of VP. The distance between projectors of P and Q is 55 mm. ठीक है, ठीक है. So this is the problem. This is the problem. ठीक है. Draw the projections of line PQ whose endpoint P is 20 mm above HP and 20 mm in front of VP. The endpoint Q is 30 mm above HP and 40 mm in front of VP. The distance between the projectors of P and Q is 55 mm. Simplest problem. Start करते हैं. XY line. So this is XY line. Then P and Q are completely defined. So draw the ठीक है. तो हम क्या करेंगे कि P और Q दोनों एंड पॉइंट कंप्लीटली डिफाइंड है, तो हम या तो Q को फिक्स कर सकते हैं, मतलब हिंज पॉइंट एज्यूम करेंगे, या Q को P को करेंगे, Q को करेंगे.
तो हम P को मान लेते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड है ये Q, तो हम इसको हिंज कर लेते हैं, मींस द लाइन कैन रोटेट अप दिस। और एक प्रोजेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्टर हो गया P0, स्मॉल p0। हाँ, इसके ऊपर स्मॉल p डैश और स्मॉल p लाई करेगा। अब Q का प्रोजेक्टर P से 55 mm पे, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इससे 55 mm दूरी पर। यहाँ से 55 का डिस्टेंस ले लेते हैं। फिफ्टी फाइव मतलब ये डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। और यहां से भी हम Q का भी प्रोजेक्टर बना देते हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ Q। सो दिस इज Q0। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर्स फिक्स। इसके ऊपर Q डैश, Q आएगा, P डैश और P आएगा। मार्क कर लो कितने डिस्टेंस पे आएगा। तो P पॉइंट 20 दोनों प्लेन से दूरी है, HP और VP दोनों से, तो 20 अबव, तो XY के ऊपर 20 मार्क करते हैं। So this is 20 and this is 20, yeah 20। और जैसे ये मार्क करेंगे हम, उसके बाद में इसका प्रोजेक्टर भी ड्रॉ कर लेंगे। लोकस, सॉरी नॉट प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर तो ड्रॉ कर ले, लोकस। सो दिस इज द लोकस ऑफ A डैश and this is the locus of P dash and this is the locus of P। Similarly मार्क कर लेते हैं पॉइंट Q dash। So the end point Q is 30 mm above, तो 30 mm, 10 20 और ये 30, so this is 30 और 40 mm in front of VP, VP से 40, so this is 40, this point is, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट Q डैश है। जैसे हमने इसको भी किया फिक्स, उसी तरह से हम इसका लोकस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, Q डैश की लोकस लाइन भी। और Q की लोकस लाइन भी। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट के फ्रंट व्यू की लोकस लाइन और टॉप व्यू की लोकस लाइन। तो फ्रंट व्यू क्या है? ये एंड पॉइंट P का फ्रंट व्यू, ये एंड पॉइंट Q का फ्रंट व्यू। तो लाइन का फ्रंट व्यू क्या हो गया? P डैश Q डैश, जोड़ लो, P डैश Q डैश जोड़ देते हैं इनको। So this is the front view of line PQ और इनको जोड़ दो। So this is the front view of line PQ. This is the top view of line PQ. And this angle is alpha. And this angle is beta. तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये नॉन हो गया। यहां से हम इसको मेजर कर लेंगे कितना आएगा। PQ की लेंथ भी मेजर कर लेते हैं कितनी आएगी। So this length is coming out 58 mm. So this is 58 mm front view length. Now similarly measure the top view length.
the top view length is coming 60 mm. So this is 60 mm. Now what about the angle? एंगल मेजर करने के लिए इसकी हेल्प लें क्या? So let's take this help on this. So this angle alpha is 10 degree. अल्फा यहां से मेजर कर रहे हैं हम, तो 10 डिग्री आ रहा है. So this alpha is equal to 10 degree. बीटा बीटा भी मेजर कर लेते हैं. अरे यार, तो बीटा एंगल आएगा yes, बीटा एंगल इज इट इज अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री का है. हाँ करेक्ट, 19 डिग्री, 20 नहीं होगा. सो दिस इज इक्वल टू 19 डिग्री. तो फ्रंट व्यू की लेंथ मिल गई, टॉप व्यू की लेंथ मिल गई, फ्रंट व्यू का एंगल एक्स वाई के साथ में, टॉप व्यू का एंगल एक्स वाई के साथ में. अब साइड व्यू की लेंथ भी निकाल लेते हैं. तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे 45 हाँ, साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला क्या काम करेंगे, x1 y1 ड्रॉ करेंगे. ठीक है, x1 y1 ड्रॉ करेंगे. तो x1 y1 ड्रॉ करते हैं हम 45 डिग्री पे. ड्राफ्टर से 2 डिग्री के इसमें है, मैं इससे 45 डिग्री एंगल बनाता हूँ. उससे पहले आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन perpendicular to x1 y1 xy. So this is my line x1 y1. तो ये हमने ड्रॉ कर ली x1 y1. ये xy के साथ में जहां इंटरसेक्ट हुई वो ओरिजिन पॉइंट आ गया. इस ओरिजिन से हम 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे. 45 डिग्री की लाइन यहां से 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर ली. ये 45 पे लाइन हो गई. ठीक है, अब हमें क्या करना है, P का टॉप व्यू, ये रहा P का टॉप व्यू की ये लाइन, जो लोकस लाइन है साइड व्यू के लिए प्रोजेक्टर रहेगी. तो ये इसको इस लाइन तक बढ़ाना, यहाँ तक बढ़ाना. और ये ऑलरेडी यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ से 90 डिग्री टर्न देना है इनको. यहाँ से 90 डिग्री टर्न दिया हमने. यहाँ से 90 डिग्री. तो ये P का लोकस चेंज हुआ 90 से, Q का लोकस चेंज हुआ. अब हमें साइड व्यू में चाहिए P पॉइंट और Q पॉइंट. तो P का साइड व्यू है P डबल डैश और Q का साइड व्यू है Q डबल डैश. तो कहां मिलेगा, P डबल डैश मिलेगा P डैश का लोकस ये लाइन और P का टॉप व्यू की लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, तो ये P डैश के लोकस वाली लाइन को हम आगे तक बढ़ाते हैं, ये इंटरसेक्ट करी यहां पे. सो दिस इज अवर पॉइंट P डबल डैश. नाउ Q डबल डैश, सो दिस इज Q, ये Q डैश वाली लाइन
ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हुए, सो दिस इज Q डबल डैश। साइड व्यू में चाहिए तो P डबल डैश और Q डबल डैश साइड व्यू के पॉइंट है, दोनों को जोड़ दो, सो विल जॉइन दिस टू। So this is joint. So this is side view. Side view की लेंथ मेजर कर लो. What is the length of this side view? So the side view length is 22 mm. So this is coming out 22. So the side view length is 22 mm. ये side. This is okay? Yes, sir. Projection समझ में आया इस लाइन के? Yes, sir. भाई और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बन गया ना प्रोजेक्शन? फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, फ्रंट व्यू का एक्स वाई के साथ एंगल, टॉप व्यू का एक्स वाई के साथ एंगल, साइड व्यू की लेंथ। अब साइड व्यू का एक्स वाई के साथ एंगल आप मेजर कर सकते हैं यहां से, ये एक्स वाई के साथ, और एक्स वन वाई वन के साथ ये एंगल। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर दिए, वो लाइन इस तरह से थी, बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड फर्दर कि व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। And what is its angle of inclination with horizontal plane and with vertical plane। फिगर को देखो, एनालाइज करो और बताओ मुझे कि ट्रू लेंथ कौन सी है, थीटा कौन सा है और फाई कौन सा है। 60 mm ट्रू लेंथ होगी सर। 60 mm ट्रू लेंथ होगी। और कोई? Anyone else? कोई और बताएगा कि सही बोला है इनने आंसर जो दिया है 60 mm क्या ट्रू लेंथ होगी? Observe this figure and this figure। एक और चीज, अब ऑब्जर्व करना ये दोनों फिगर दिख रहे हैं, दोनों फिगर, एंड देन कंपेयर दिस। ये फिगर अभी बनाया है, ये से पहले वाला प्रॉब्लम, इसके बाद वाला प्रॉब्लम। जस्ट ऑब्जर्व क्या क्या रिलेशन है ट्रू लेंथ के साथ में और प्रोजेक्टेड लेंथ के साथ में। सर फिर इसमें जो ट्रू लेंथ है वो साइड वाले व्यू की नहीं होगी क्या? ये तीनों लेंथ ट्रू लेंथ नहीं होगी, क्योंकि उसको पैरेलल होना चाहिए ना। यस। जब हम इस लाइन को किसी प्लेन के पैरेलल करेंगे तो उस प्लेन में जो भी व्यू बनेगा उसमें ट्रू लेंथ मिलेगी। तो हियर द लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स, तो हमें ट्रू लेंथ नहीं मिलेगी। सर हाँ। आपने कहा था कि जो अपना थीटा है सर, जो फाई है वो अपना ए पे ही बनेगा, कैपिटल ए पे। सर आपने ये फर्स्ट वाला डायग्राम पे हाँ। ए डैश पे क्यों बनाया?
ये यस सर। कैपिटल ए डैश से बनेगा ना थीटा, सर तो कैपिटल ए आप, डैश से थीटा है। सर तो आपने कहा था ना कि ए कैपिटल ए पे ही हमेशा बनेगा थीटा। हाँ तो वहीं से तो कैपिटल ए डैश से बनेगा थीटा, फाई एंगल बनेगा कैपिटल ए से। ये देखो देखो और आपका सर क्या ऑब्जर्वेशन हॉरिजेंटल रहा? प्लेन पे ट्रू लेंथ होती है ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। When a line is parallel to horizontal plane, then its top view will be of true length. And when a line is parallel to vertical plane, its front view will be of true length. मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होगी उस प्लेन में जो भी व्यू बनेगा वो ट्रू लेंथ का बनेगा। जैसे इस वाले को यदि हम देखें तो हियर द लाइन इज इंक्लाइंड विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय 30 डिग्री एंड इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो वर्टिकल प्लेन में कौन सा व्यू बना इस लाइन का? ये केस याद आया? लाइन ए बी is inclined to HP and parallel to VP. तो VP में कौन सा व्यू बनता है इसका? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बना ना, तो ये फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ का हुआ, वो टॉप व्यू या प्रोजेक्टेड लेंथ होगी। सो दिस इज द प्रोजेक्टेड लेंथ। ठीक है, दूसरा ये वाला, this line is inclined to vertical plane and parallel to horizontal plane. तो इस horizontal plane में टॉप व्यू बना जो कि ट्रू लेंथ का है, और फ्रंट व्यू यहां से आप देख रहे हो, तो फ्रंट व्यू में ये प्रोजेक्टेड लेंथ मिलेगी। So this is project, ये टॉप व्यू में ट्रू लेंथ। जबकि इस फिगर में जो लाइन है, द लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द रेफरेंस लाइन। फ्रंट व्यू इज अ लाइन इंक्लाइंड टू XY, टॉप व्यू इज अ लाइन इंक्लाइंड टू XY। फ्रंट व्यू लेंथ इज नॉट इक्वल टू टॉप व्यू लेंथ इज नॉट इक्वल टू ट्रू लेंथ, जो भी हमने, ये लाइन दोनों से इंक्लाइंड है, VP से फाई एंगल पे और HP से थीटा एंगल पे। तो हमें इस व्यू में यहां प्रोजेक्शन में ट्रू लेंथ नहीं मिलेगी। रिमेंबर, हमें ट्रू लेंथ यहां पर ढूंढनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? उससे पहले मैं आपको एक वर्क देता हूं, छोटा सा वर्क है। ठीक है, दो प्रॉब्लम देता हूं, उन दोनों प्रॉब्लम के प्रोजेक्शंस बना के फटाफट बताओ। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूं कि जब ऐसा केस हो तो हमें यहां से ट्रू लेंथ कैसे मिलेगी और ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किस तरह से मिलेंगे। ठीक है, चलो
नोट करो। हम्म, यही प्रॉब्लम ले लो, मैं इसमें चेंज कर रहा हूं। टेक दिस डिस्टेंस इज 0। ठीक है, टेक दिस डिस्टेंस इज 0। नाउ ड्रा द प्रोजेक्शंस। 5 मिनट में बन जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये बनाओ। सर यही एक बनानी है। क्या? सर यही एक ये लाइन, प्रॉब्लम बनानी है। हाँ ये एक बनाओ। यस सर। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई करो उसको। और प्लीज किसी को है ना कुछ समझ में नहीं आता, प्लीज पूछ लेना। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब टॉपिक। सर
सर हाँ बोलो। सर मैंने बनाया है, दिखाओ। हाँ दिखाओ। हाँ बोलो। सर इसमें जो है साइड व्यू कुछ गलत नहीं बना है। अच्छा साइड व्यू। ठीक है। ठीक है, बराबर है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई के परपेंडिकुलर बनेंगे, जो कि बन रहे हैं। हाँ गुड। इनकी लेंथ मेजर कर लो, है ना। हाँ लेंथ मेजर कर लो। ठीक। हाँ जी, और किसी ने ड्रॉ किया? सर हो गया मेरा भी। हाँ सुमित बताओ आप क्या। जी सर बता रहा हूँ। मेरी बहन फिर भी मैं जल्दी मंगवा लेता हूँ, वो तो कुछ ऑब्जेक्शन लग के आ गया था तो वापस से फिर लेट हो गई। फिर भी सर ये दिख रहा है? यार फिगर, हाँ हाँ दिखा दिखा दिखा। यस, टॉप व्यू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, फ्रंट व्यू इज आल्सो परपेंडिकुलर जी टू। सर ये, हाँ जी सर ये टॉप व्यू हो जाएगा, ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। ठीक है ठीक है, गुड गुड ये जी सर, थैंक यू सर। गुड गुड। ये अपनी जो अभी आई है ये तो उसमें हुआ था। हाँ भाई ऑनलाइन वाला है वो। हाँ ऑनलाइन वाला तो पहला मिला है या नहीं? अच्छा हाँ, और कोई बताओ। और कोई इसी में आया। सर मेरा हो गया, मैं शो करूं? हाँ दीदी आप भी बता दीजिए। हाँ हाँ। अच्छा इन लोगों से बुला के करवाएंगे साइन के अनुसार। हाँ इन लोगों को बुलाया सर दिख रहा है? यस विजिबल विजिबल है, बट this is your top view, this is your front view and this is your side view. Yes 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 yes, good good good. यस सर। कुछ मतलब you got it. Okay ठीक है
समझ में आ रहा? और भी भैया बता दो, किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज। हाँ, मैं स्लो हूँ यहाँ पे, अभी स्लो पढ़ा रहा हूँ, फास्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप करना है। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके इसमें। और कोई बताओ भैया। सर मैं बताऊं? सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा, माइक में म्यूट था। हाँ, यस, कौन प्रेजेंट कर रहा है? सर मैं प्रेजेंट करूं? हाँ, करो। यस सर। सभी ड्रॉ तो सभी ने कर लिया ना? यस तुषार। सर हो रहा है क्या प्रेजेंट? हाँ, बट आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर एक मिनट। हाँ, हाँ। सर ये रहा। हम्म, फोकस स्टेबल करो इसको। सर हुआ? नहीं, होल्ड इट, इसको स्टेबल कर लो, क्योंकि आपका शायद मोबाइल रश्मि दिख ही नहीं रहा है। वाइब्रेशंस हो रहे हैं ना आपके, तो दिख नहीं रहा, फोकस नहीं आ रहा है कैमरे का। सर एक मिनट मैं शेयर स्क्रीन करके हाँ, कर रही शेयर हूँ। स्क्रीन करके कर दो। सर अब दिख रहा है? हाँ, अब विजिबल हुआ, अब विजिबल हुआ। इसको 90 डिग्री से टर्न कर लो आप। हाँ, हाँ, यस। सो दिस इज योर साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ओके, ओके, ठीक है। थोड़ा सा है ना, आप लोगों को लाइन वर्क में इंप्रूवमेंट करना होगा। अभी सारी लाइन की इंटेंसिटी एक जैसी दिख रही, डार्क। तो इट इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल कि कौन सा फ्रंट व्यू है और कौन सा टॉप व्यू कहाँ था। ठीक है? तो ओके। ओके सर। कंस्ट्रक्शन लाइंस जो है वो लाइट होंगी आपकी, और जो हमारे ऑब्जेक्ट की लाइन है, जैसे फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये थोड़ी सी डार्क होगी, ठीक होगी। ठीक है? यस। यस सर। हाँ, और कोई प्रेजेंट करना चाहेगा, बताना चाहेगा?
सर मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ। दिख नहीं रहा है। अब शीट को नीचे रखो और मोबाइल ऊपर रखो, या लैपटॉप से दिखा रहे हैं? हाँ दिखी लाइन, ठीक है। यस, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एंड साइड व्यू, ठीक है। ब्लर है बट इट्स ओके, विजिबल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुस्कान, गुड। हाँ तो और किसी को प्रेजेंट करना हो कर ले, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ना प्रॉब्लम इज, मैं आपको ट्रू लेंथ और थीटा और फाई एंगल निकालना बताता हूँ यहाँ पर। हम इसको ऑटोकैड में भी करेंगे, मुझे एक ऑटोकैड का भी एक लेक्चर लेना है आपका, जिसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस और ये लाइन के प्रॉब्लम और ये सब सॉल्व करना है। तो सर ऑटोकैड हो नहीं पाया सर इंस्टॉल अच्छे, मतलब चल नहीं रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर, ओपन नहीं हो रहा है। इंस्टॉलेशन एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से करना उसको। इट रिक्वायर्स लाइसेंस, ओके सर। तो वो एक बार कनेक्ट होना चाहता है सर्वर के साथ में, तो यदि हो जाएगा तो कनेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, नो इशू, ठीक है। और फिर भी अगर इशू है कुछ तो उसको अनइंस्टॉल करना एंड देन इंस्टॉल इट अगेन। और नहीं तो यू कैन डू कि आप मेरे को रिमोट एक्सेस दे देना आपके सिस्टम की, सो आई विल चेक, मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है पुष्पेन? ओके सर। हाँ जो my presentation is this, okay, so this is just note the process, हाँ कैसे हम फाइंड आउट करें, फिर वो क्या होगा मैं समझाऊंगा उसको बाद में। अभी तो ये है इन प्रेजेंट कंडीशन कि दिस इज माय फ्रंट व्यू एंड दिस इज माय टॉप व्यू, सो आई वांट टू नो ट्रू लेंथ, थीटा and phi. Simple procedure. There are two methods which are used to determine this true length, theta and phi. One is known as rotation method and other one is known as the trapezoid method. ठीक है? So पहले हम rotation method की बात करेंगे. So rotation method is that कि क्या method है वो? It's a simple कि first rotate the front view and make it parallel to XY line, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है, हम क्या करेंगे, इस फ्रंट व्यू को, इस फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे और रोटेट करके इसको XY के पैरेलल करेंगे। सो आई एम रोटेटिंग दिस, सिंस द एंगल इज स्मॉल, तो थोड़ा डिफरेंस ये। सो इस फ्रंट व्यू को हमने जब रोटेट किया तो यहां पर आके मीन्स अल्फा एंगल को मैं 0 कर रहा हूं। व्हाट आई एम डूइंग इज, फ्रंट व्यू को जब मैं XY के पैरेलल कर रहा हूं, इट मीन्स आई एम मेकिंग द लाइन पैरेलल टू हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल के प्लेन के पैरेलल कर रहा हूं मैं। तो मैंने फ्रंट व्यू को रोटेट किया, ये रोटेट किया, नाउ हियर यहां पर the front view is parallel to XY line, so mark this point as 1 dash here, here it is, here जहां पे ये पैरेलल हुआ ना XY के, तो यहां पे इस पॉइंट को मैंने मार्क किया 1 डैश, और इस 1 डैश से I will draw a projector. इस 1 डैश से मैं एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लूंगा, ये प्रोजेक्टर, ठीक है। सो मैंने P डैश Q डैश, मतलब हाँ उससे पहले रोटेट जब लाइन को करना है तो मेक श्योर कि आपको लाइन का एक एंड पॉइंट को हिंज करना है,
ठीक है, मतलब ये जो लाइन है P और ये Q दो हैं, तो आइदर यू hinge the point Q so that the line can rotate about this point, or make the point P as a hinge point so that the line can rotate about this point P. ठीक है, या तो P को आप हिंज करो या Q को हिंज करो, किसी को भी एक को हिंज करना है। तो माय प्रोसीजर इज मैं P को मैंने हिंज किया। तो जैसे ही मैंने P पॉइंट को हिंज किया, ये मेरा जो स्मॉल p डैश है इसके साथ में यहां पर कैपिटल P डैश आ जाएगा, और ये स्मॉल p है तो इसके पास में मेरा कैपिटल P आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा हिंज पॉइंट है ये। सो दिस इज माय एक्चुअल पॉइंट, प्रोजेक्शन में भी एक्चुअल होगा ये। ठीक है, ये पॉइंट का लोकस जो है वो चेंज हो सकता है, मींस द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट Q चेंज हो सकती है। जैसे अभी इस पोजीशन में मैं यदि इसको रोटेट करूं तो ये नई पोजीशन हो गई, ये नई पोजीशन हो गई, ये नई पोजीशन हो गई। सो द लाइन कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट इन दिस वे और इन दिस वे। ठीक है, तो मैंने इसको जैसे ही जिस पॉइंट को मैं हिंज करूंगा उसमें ये लिखूंगा, सो दिस इज कैपिटल P डैश, दिस इज कैपिटल P, और यहां से अब मैं यहां पर इसको कंपास का निडल यहां रख के ये फ्रंट व्यू को अब रोटेट करूंगा इसके अबाउट, दिस विल बी माय सेंटर ऑफ रोटेशन। ये सेंटर ऑफ रोटेशन होगा फ्रंट व्यू के लिए। तो मैंने इसको रखा और यहां पे रोटेट किया, तो जहां पर ये एक्स वाई के पैरेलल हुआ है तो ये P डैश का लोकस जा ही रहा है यहाँ पे, है ना, इस लोकस पर वो पॉइंट आएगा, तो इसको मैंने बोला 1 डैश, 1 डैश। ठीक है, इस 1 डैश से मैंने ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो जब मैं लाइन रोटेट करूंगा फ्रंट व्यू को तो क्या होगा कि सिंस ये पैरेलल हो रहा है तो इसमें क्या चेंज होगा, स्क्यू में ये जो स्मॉल क्यू है इसकी लेंथ बढ़ेगी, टॉप व्यू की लेंथ इंक्रीज होगी। तो टॉप व्यू की लेंथ इंक्रीज होगी, सो दिस क्यू विल मूव ऑन दिस लोकस। तो कैपिटल Q इस लाइन पर कहीं लोकेट करना होगा। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से पैरेलल किया, पॉइंट 1 डैश लिया, प्रोजेक्टर बनाया। अब इस प्रोजेक्टर पे कैपिटल Q पॉइंट होगा, इस प्रोजेक्टर पे। तो कहां होगा, वो होगा इस टॉप व्यू के लोकस पे, इस Q के लोकस लाइन पे होगा। तो इस लाइन पे भी होगा और इस लाइन पे भी होगा, दोनों पे साइमल्टेनियसली कहां होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा यहाँ। तो ये वाला पॉइंट मेरा होगा कैपिटल Q, और इस कैपिटल Q को मैं इस कैपिटल P से जब ज्वाइन करूंगा, कैपिटल P से कैपिटल Q को जोड़ना है मुझे। तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा फाई, और ये जो लाइन होगी कैपिटल PQ, दैट कैपिटल PQ विल बी माय ट्रू लेंथ। ये ट्रू लेंथ होगी। ठीक है, तो मुझे यहां पर फाई एंगल मिल गया, ट्रू लेंथ मिल गई। अब बचता क्या, थीटा। थीटा लोकेट करने के लिए बिल्कुल सेम, हम अब टॉप व्यू को पैरेलल करेंगे एक्स वाई के, टॉप व्यू को रोटेट करेंगे। तो ये हमारा टॉप व्यू है और इसको हम पैरेलल करें तो ये जो है इसको रोटेट जब किया टॉप व्यू को, तो ये टॉप व्यू यहां पर पैरेलल हुआ, यहां पर ये पॉइंट आया, दिस इज 1, इसको मैंने नाम दिया पॉइंट 1। सो P1
P1 की लेंथ और ये PQ की लेंथ, स्मॉल PQ, दोनों बराबर, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है यहां से। अब ये पैरेलल हो गया, तो जब ये पैरेलल होगा 1 से, अब मैं प्रोजेक्टर बनाऊंगा। ये O से मैंने ये 1 से प्रोजेक्टर बना लिया है, ये प्रोजेक्टर बनाया 1 से। इस प्रोजेक्टर पे कैपिटल Q डैश लाया करेगा इस पे, दैट इज लाइन का दूसरा वाला पॉइंट। लेकिन स्मॉल Q डैश ये रहा, तो इस Q डैश के लोकस पर कैपिटल Q डैश होना चाहिए, मतलब कैपिटल Q डैश और स्मॉल Q डैश दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए। तो वो इस लाइन पर होगा कैपिटल Q डैश, और कैपिटल Q डैश हम बोल रहे हैं कि इस पे भी होना चाहिए। तो दोनों पे कहां होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा। तो ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सो दिस पॉइंट इज कैपिटल Q डैश। Now join this capital Q dash with capital P dash. Capital P dash से ये capital Q dash को जोड़ दो यहां से। So this is angle theta, and this capital P dash, capital Q dash is ट्रू लेंथ। क्योंकि थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल कौन सी लाइन बनाती है? ट्रू लेंथ। ये फाई एंगल है, फाई एंगल कौन सी लाइन बनाती है? ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ टॉप व्यू में भी मिली जब हमने फाई निकाला था, और ट्रू लेंथ हमें फ्रंट व्यू में भी मिली जब हमने थीटा निकाला। तो आपके पास में 2 ट्रू लेंथ होगी। ये दोनों ट्रू लेंथ एक ही होना चाहिए, मतलब यहां से ट्रू लेंथ निकाली और यहां से ट्रू लेंथ निकाली, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम गलत सॉल्व किया। सिंपल चेक, लाइन के प्रॉब्लम्स में ऑटो चेक है आपके कि आपने प्रॉब्लम सही सॉल्व किया है या नहीं। ठीक है, तो यू मेजर दिस एंगल थीटा, थीटा यहां से मेजर हो जाएगा, यू मेजर दिस लाइन। तो इसकी जो ट्रू लेंथ है वो इट इज कमिंग आउट approximately since 63 और यहां से भी ये आ रही है 63। सो ट्रू लेंथ टॉप व्यू में भी 63, ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में भी 63। सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली। ये ऑटो चेक है। ये हो गई हमारी ट्रू लेंथ, ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा फाई। दिस इज द प्रोसीजर। ठीक है, यस डाउट कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज, मैं फटाफट एक फ्री हैंड से आपको समझा देता हूं एक बार और। कि मान लो ये एक्स वाई लाइन है और ये हमारी लाइन है कोई भी से दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, ये बी डैश का लोकस, ये ए डैश का लोकस, ये ए है, ये बी है, तो ये बी का लोकस। ठीक है, ये फ्रंट व्यू की लेंथ है, ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है। तो एक एंड को हिंज कर दो, इसको। ये आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है। सो दिस इज ए डैश एंड दिस इज ए। तो मैंने ए को हिंज किया, जैसे ही ए को हिंज करूंगा आई विल राइट हियर कैपिटल ए डैश एंड कैपिटल ए। देन रोटेट द लाइन, रोटेट द फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू, इसको रोटेट करना है। सो यहां से पकड़ के इसको रोटेट किया तो यहां आया। सो दिस पॉइंट इज ऑन द ए डैश लोकस, सो दिस इज 1 डैश पॉइंट। यहां से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दिया। ये प्रोजेक्टर बी के लोकस को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट कैपिटल बी होगा। ये कैपिटल ए से इस कैपिटल बी को जोड़ दो।
तो ये एंगल आपको मिलेगा फाई, और ये कैपिटल ए बी मिलेगी ट्रू लेंथ। दिस इज द प्रोसीजर। अब थीटा एंगल के लिए टॉप व्यू ये रहा, यू रोटेट द टॉप व्यू, मेक इट पैरेलल, तो ये टॉप व्यू यहां पैरेलल हुआ, से दिस पॉइंट इज 1, इस 1 से ये प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, ये प्रोजेक्टर बी डैश के लोकस को जहां पे कट करेगा वो पॉइंट होगा कैपिटल बी डैश। इस कैपिटल बी डैश से कैपिटल ए डैश को जोड़ दो, जोड़ दिया, ये एंगल जो है थीटा होगा, और कैपिटल ए डैश बी डैश लाइन की ट्रू लेंथ। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू लेंथ एंड ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और दिस मेथड इज नोन एज रोटेशन ऑफ व्यू मेथड, जिसमें हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू को रोटेट करके निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया ट्रू लेंथ निकालने का? यस सर। भैया कोई भी किसी को भी अभी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज प्लीज हाँ पूछ लीजिए। कॉन्सेप्ट हैं, दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, यही अब काम आएंगे, आगे कैरिड होंगे हमारे। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो अब वो जो ट्रेपेजॉइड मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस। मैं आपके अटेंडेंस ले लेता हूं, और आप लोगों का क्लास टेस्ट कैसा रहा?